Krishnan, good evening, all of you. Probability, chapter number 4. Sorry, 5th. Topic here, probability. Yes, sir. Lecture number 1. In picture, you are watching this probability of the rain. Probability. Prediction. बारिश आज विरार में होगी या नहीं होगी? एक तो होगी, नहीं होगी, कितनी होगी, बोल नहीं सकते ना. इज प्रेडिक्शन. लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था? प्रेडिक्शन दिया था ना. एलिमेंट यहाँ पे है, इतने हैं एलिमेंट, इनका नाम ए रहेगा. वो प्रेडिक्शन क्या होगा? उसका राइट हो गया. राइट. यहाँ पे नंबर्स गेम खेलते हो आप. राइट. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नंबर कितना 4 आएगा, 12 आएगा, 25, 17, कोई भी आ सकता है. सो प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मतलब प्रेडिक्शन देना. These are given by this scientist name as Perry D. Fermat, Blaise Pascal, Buffon, Carl Pearson, Perry Simon, Laplace. These are the scientists. They give this theory of probability. Random experiment means here definition of random experiment. Randomly. Suppose coin toss here. Coin toss, you got head or tail. Right? Then cube is a toss. They got 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers are there. Cards are there. Playing cards. 52 cards are there. Among them, one card is selected. One card is a pick up. The which card will be here? Is a Ekka, Duri, Tri, Chauka, right? King, Queen, maybe any. It is an experiment in which all the possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty. Means dice or cube is thrown, so you know that यहाँ पे नंबर कौन सा आने वाला है? एक तो 1 आने वाला है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6. बट कैन यू फिक्स से आप फिक्स बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, 4 ही आएगा? मीन्स देयर इज अ नो सर्टेनिटी. प्रेडिक्टेड. नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्शन यहाँ पे फेल है. कॉइन टॉस किया, परफेक्टली आपको बोल नहीं सकते कि हेड ही आएगा, टेल आएगा. लेकिन आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों हेड या टेल दोनों में से कुछ आ सकता है. ये आपको रिजल्ट मालूम है. राइट. बट फिक्स नहीं है. इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. मींस इट इज अ एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर known in advance, but none of them can be predicted with certainty. Results are known, but not certainty. बारिश आएगी, ये कभी आएगी पता नहीं है. Uncertainty. Rolling of die. Die is thrown. कितना नंबर आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया. Maybe what is a 6 here? 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. This may be what? Any. All possible results are there known. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total all possible results are 6 are there. Outcome कितने इसके? 6 आने वाले हैं. एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 या 4 या 5 या 6. Total outcome here 6. The result of random experiment 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Right? Maybe any. Now equality likely outcome. Equally likely outcomes. Equal likely means here that is a 1, 2, 3 die is thrown. Then you got here each outcome is equal like means 1 को जितना probability आपका 1 का prediction उतना ही 2 का है, उतना ही 3 का भी बोल सकते, उतना ही 4 का है, उतना ही 5 का, उतना ही 6 का. सबको कैसा इक्वल ही है.
each outcome is equally like to occur means coin toss किया head या tail 50% चांस क्या head का है 50% चांस क्या tail का है right let's study a practice set 5.1 in practice set 5.1 first question here how many possibilities are there in each of the following Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. That is Ajanta, Mahabaleshwar, Lonar Sarovar, Tadoba Wildlife Sanctuary, Amboli, Raigad, Matheran, and Anandwan. These are the places she want to visit. तो सब प्लेस पे विजिट कर सकते क्या वो वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र शी प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम किसी एक को जाने का वहां पे तो उसको एक सिलेक्ट करना है तो कहाँ जाएगी वो एक तो अजिंठा जा सकती है और महाबलेश्वर और लोनार सरोवर और तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अंबोली और रायगढ़ और माथेरान और आनंदवन इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा राइट इस ऑल दिस should be write in a curly bracket now question is a 1 marks how many possibilities are there कितने possibilities के हैं जितने प्लेस है उतने पॉसिबिलिटी होगी राइट 1 2 3 4 5 6 7 and is 8 possibilities same the places covered are as follows these places are Ajanta Malbeshwar Lonar Sarovar Tadoba Wildlife Sanctuary Amboli Raigad Mathera or Anandwan that is 1 2 3 4 5 6 7 and what is the 8 total what 8 places are there so 8 possibilities are there therefore there are 8 places in all question kya how many possibilities are there that is total 8 possibilities are there now how to write the answer first write the places covered as follows these are the places total 8 places are that is 8 possibilities are there वो अजिंठा हो सकता है या महाबलेश्वर हो सकता है लोनार सरोवर हो सकता है रायगढ़ हो सकता है माथेरान हो सकता है कोई भी maybe what any therefore there are 8 places 8 possibilities total number of possibilities in choosing in place that is there is a 8 how many total 8 are there clear है सबको ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको लिखना है बस कितने पॉसिबिलिटीज है is it clear students in chat section type the yes or no in chat section you have to type there only yes or no okay Vineet Vishal Harsh Abhishek okay Chris चलो समझ गया ओनली प्लेसेस आर गिवन जितने प्लेसेस है उतना क्या होगा उसका पॉसिबिलिटी होगा इसको साइड लेता हूँ see the next question any day of week is to be selected randomly total days of week how many days of weeks are there how many days of week any day of week is to be selected then how many possibilities are there please play that slide अभी कौन ये हरकत कर रहा है स्क्रीन पे आपको बोला कुछ मत करो आपको पीछे का स्लाइड चाहिए ना तो ये रिकॉर्डिंग है आपको मैं सेंड कर दूंगा उसका टेंशन नहीं है ओके आपको वो लिखना है तो बाद में आप लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है समझ के लो पहले any day of weeks to be selected randomly mean what 7 days are there Monday Tuesday or Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday right 7 days total days are here a week has 7 days right these days are Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and what is a Sunday maybe any means 7 है possibility कितना होगा 7 Monday to Sunday that is total number of possibility in which a day of week can be chosen randomly
इट मे बी व्हाट 7, कितने हो सकते हैं 7 हो सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है पॉसिबिलिटी निकालना है बस, कितनी पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ना बाकी है, पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे पढ़ना है पॉसिबिलिटी कितने, आउटकम्स कितने आ सकते हैं वो पढ़ना है। नेक्स्ट सिलेक्ट वन कार फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पैक ऑफ 52, टोटल कार्ड्स कितने 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी होगी 52 होगी, राइट। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर 52 पॉसिबिलिटीज, ओके ना, ओके राइट प्राप्ति शंकर राइट। हाउ मेनी 52 पॉसिबिलिटीज, जितने कार्ड है उतने क्या होंगे पॉसिबिलिटी, कौन सा भी कार्ड आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे किंग डायमंड होगा, किंग स्पेड हो सकता है, किंग हार्ट हो सकता है, राइट, या 10 हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, राइट। ईच कार्ड ब्रिंग 4 टाइप्स, डायमंड भी है, हार्ट भी है, स्पेड भी है, राइट। इट्स अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। चलो अरेंज कर दे, मे बी व्हाट किंग, दीज आर टोटल 52 कार्ड्स आपके सामने हैं, देख सकते हैं इसमें। एस कार्ड 3 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू क्वीन एंड किंग, राइट। हर एक कितने 4 4 है। ब्लैक कार्ड 26 है, रेड कार्ड 26 है, डायमंड 13, हार्ट 13, ऐसे कितने 13 टाइप के कार्ड्स रहेंगे। टोटल हाउ मेनी कार्ड्स here 52 cards, okay, total number of cards here 52, so possibilities are there 52. Yeah, just first practice at 5.1 is a question 1 marks, you have to write only and only here total number of possibilities. So total number of possibilities a card from a pack of card can be chosen is a 52. नेक्स्ट 1 नंबर फ्रॉम 10 to, यहाँ पे आपको कार्ड ड्रॉ करने का नहीं है, वहाँ पे खाली आपको आंसर वहां पे लिखना है। आपको समझने के लिए कार्ड आपके सामने लाया, किसी ने कार्ड देखा होगा, नहीं देखा होगा, सबने शायद देखा भी है। 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 रिटर्न ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अभी ये कार्ड अलग है, दिस कार्ड्स आर देयर, राइट, हियर नंबर इज रिटर्न, हर एक पेज पे ऐसा नंबर लिखा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, हर एक कार्ड के पास नंबर लिखा है, राइट। मीन्स यार पॉसिबिलिटी कितनी होगी, देखो 10 to 20 नंबर्स है, 10 20 नंबर मीन टोटल कार्ड हाउ मेनी यार, टोटल आई थिंक 11 कार्ड्स, राइट। सो सम ऑफ स्टूडेंट आंसर देयर, हरवी शंकर हार्श the answer there 11, right. Select one card randomly, that is there are possibility how many 11 possibilities, कितने होंगे 11 possibilities, right. one card from the 10 to 20, तो आपको कैसा लिखना है, first write the card, number bearing card, what is the 10 to 20 are, number on cards 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, काउंट करो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो पॉसिबिलिटी कितनी रहेंगी 11, दिस। आपको कार्ड ड्रॉ करना है, यहाँ पे नंबर लिखना है बस, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 11, सो पॉसिबिलिटीज total number of possibility of card can be chosen randomly, randomly क्या मतलब कोई भी कार्ड, अभी ये कार्ड ऐसे है तो इसमें से एक कोई भी कार्ड भी चला सकता है, फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, कोई भी कार्ड इसमें से निकाल सकते हो, राइट, मीन्स रैंडमली। सबको क्लियर है ये, प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन, ये क्लियर टू ऑल, किसी को डाउट है, सर इन नोटबुक कैन वी राइट ऑन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, यस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है आंसर ना, इतना ही लिखना है बस आपको, ये नीचे का कार्ड वर्ड कुछ ड्रॉ करने का नहीं है, जो आपको यहाँ पे बॉक्स ऊपर में जो दिख रहा है ये पार्ट, यही पार्ट आपका क्या होगा आंसर होगा, इतना, ये आपका क्या होगा आंसर बस,
बाकी आपको कुछ लिखने का नहीं है, 1 मार्क्स का है। कार्ड दो, कार्ड के लिए आपको 52 कार्ड्स का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने का देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ कार्ड कैन बी चोजन रैंडमली इज इक्वल टू 52 के लिए। यहाँ पे कितने हैं कार्ड्स? 11 कार्ड्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कार्ड कैन बी चोजन रैंडमली इज व्हाट? 11। समझ गया प्राप्ति? किसी कोई डाउट है यहाँ पे? नेक्स्ट द सैंपल स्पेस, नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे हम। सैंपल स्पेस वेरी सिंपल टॉपिक है, जहाँ पे अपने फर्स्ट जो हार्ड टॉपिक थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कवर हो गए। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पार्ट अभी ओमिट किया है वो आप मार्क करके रखो, उसका स्टडी आपको करने की जरूरत नहीं है। आरथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा सेकंड लेसन जितना भी है आप मार्क करके रखो, और ज्योमेट्री का भी। मोस्ट ऑफ लेसन अभी देखो ये सब सिंपल सिंपल लेसन बाकी है, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैटिस्टिक और ये सैंपल स्पेस। व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसा कि कार्ड यहाँ पे 11 है, 11 कार्ड के 11 के 11 आउटकम्स वो किस में आएंगे? सैंपल स्पेस में आएंगे। अब यहाँ पे सेट का हम यूज करेंगे, जैसा कि आपको नंबर दिया 11 to 20 नंबर है, ऑल नंबर राइट इन करली ब्रैकेट, वो एक सेट बनेगा, राइट ना करली ब्रैकेट, वो क्या बनेगा? एक सेट। उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे? इसके इवेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? इवेंट। फर्स्ट लर्न द सैंपल स्पेस। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल रोलिंग ऑफ dice roll, you get here possible outcomes what? 1 or 2 or 3 or 4 or 5 6, all this write in a curly bracket because it is a set, it is a set countable, finite or infinite, but it is a set। ये क्या है? सेट है। सेट के लिए हम यूज करते हैं curly bracket। ओके, all these possible outcomes write in a curly bracket, that is a rolling of die। आपको पॉसिबिलिटी क्या मिला यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6 मिला, राइट? सो राइट ऑल दीज इन अ करली ब्रैकेट। तो आपका यह क्या बन गया? सैंपल स्पेस। क्या बन गया? सैंपल स्पेस। इट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर यस आर इज अ ओमेगा। क्या बोलते इसको? यस। मोस्टली आप यस यूज करना, ओमेगा की चक्कर में पढ़ना मत। ड्रॉ करते करते कुछ भी हो जाएगा, इसलिए यस यूज करो, यस फॉर सैंपल स्पेस बस। यस इज इक्वल टू next sample point। next definition here, sample point। what is sample point? Each element of sample space is called sample point, means here 1 is a sample point, 2 is also called as a sample point, 3 is a sample point, 4 sample point, 5 is a sample point, 6 sample point, means element curly bracket के अंदर जितने भी आपको element दिख रहे हैं, all these elements are known as sample points। each element of sample space is called sample point। number of element in a set s divided by n number of s। इससे कितने नंबर है? ऐसे यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो एलिमेंट है टोटल नंबर कितने इसके? 6 है। तो आप नंबर ऑफ s कितना लिखोगे यहाँ पे? इज इक्वल टू 6। यहाँ पे पॉइंट कितने? यहाँ पे 6। each element of sample space is called sample point। number of element in a set s divided by number of s here, and total number of s, that is a here 6 in this sample space, right here 6। रोलिंग ऑफ डाई एग्जांपल देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ s कितना आ गया? 6। यह सैंपल पॉइंट्स 1 2 3 4 सबको क्या बोलेंगे? सैंपल पॉइंट। टोटल यहाँ पे कितने हैं? 6 सैंपल पॉइंट। समझ में आया? सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट। नेक्स्ट ही, अ कॉइन इज टॉस्ड। आपके सामने कॉइन है, कॉइन हैज टू साइड्स, हेड और टेल, HT। व्हेन इज अ टॉस किया तो आपको क्या मिल सकता है? हेड और टेल, राइट? हेड और टेल, 2 चांसेस आर देयर, हेड और टेल। 1 coin toss, a coin toss
then you got two chances, two possibilities are there, head or tail. सैंपल स्पेस बनेगा यहाँ पे h, t और h, t. Clear ना? Then number of h is equal to number of sample point here 2. Two coins are tossed. Two coins are tossed together. एक साथ दोनों कॉइन क्या टॉस करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है? बोथ आर हेड, बोथ आर टेल, फर्स्ट हेड सेकंड टेल, first tail second head. This total outcomes here 4. See these two coins are tossed there. Then you got here samples by h, both are h, head or tail, tail and head, and both are tail. Right? These are the outcomes. That is, these outcome possibility you have to write in a curly bracket. यानी कि yes वो क्या बनेगा इसका samples पे s is equal to hh, ht, th, tt. Number of s is equal to 4. If one coin is a toss twice, एक ही coin twice दो बार toss किया तो भी आपको यही लिखना है. One coin toss twice तो आपको यही लिखना है. And two coins toss at the same time simultaneously. देखो it is important here, two coins are tossed together बोला है तो भी sample space यही रहेगा. And if one coin toss twice बोला है तो भी sample space आपका यही बनेगा. Getting it? यहाँ पे s is equal to hh, ht, th, tt. नंबर ऑफ s कितने रहेंगे 4. टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर या इफ वन कॉइन टॉस ट्वाइस ऐसा लिखा है तो आपको सैंपल स्पेस ए मिलेगा. या ऐसा भी 3 कॉइन टॉस टुगेदर एंड इफ वन कॉइन टॉस थ्राइस तो 3 वाला ही लिखना है आपको. थ्री कॉइन टॉस टुगेदर और वन कॉइन टॉस थ्राइस. सी एम 3 कॉइन टॉस तो आपको फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन एंड थर्ड कॉइन. सी एम head, 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 all head. Last one tail, right? Middle one tail, then first one tail, right ना? और all tail कैसे याद रखूं? फर्स्ट के लिए क्या यहाँ पे देखो all, यहाँ पे क्या रहेगा all head, last one tail, middle one tail and first tail. All tail, last head, middle head and first head. ओके कितने हो गए देखो 1 2 3 4 4. 3 coins are tossed. S is equal to h 3 coins are tossed. Sorry, okay. HHH, STH, THH, STH, HHT, STA, STT, TST or TTT, all team, right? Total 1 2 3 4 4 4 or 8. Total how many here? 8 are there. Total outcomes are here 8. That is sample space and number of pairs यहाँ पे बनेगा कितना 8. Friend, two dice. देखो यहाँ पे आपको एक ट्रिक देता हूँ कि वो ट्रिक से आप हेड कॉइन का भी आप समझ सकते हो. जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट वन कॉइन टॉस तो आपको मिलेगा क्या एच और टी, एच और क्या मिलेगा आपको टी मिलेगा. वन कॉइन टॉस तो इसके वापस 3 कॉइन टॉस तो आप कैसा लिखोगे देखो यहाँ पे एच इसके साथ जोड़ देना एच और ये टी. यहाँ पे वापस एच और टी कर दो. एच और टी वापस यहाँ पे कितना 2 कॉइन है. 2 कॉइन के लिए क्या एच और टी एच एच. देखो क्या आ सकता है 2 कॉइन्स आर टॉस देन एच 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 टी आ गया या टी एच और क्या होता है टी टी. और 3 कॉइन टॉस है तो यहाँ पे वापस क्या करो और एच एच लगा दो, एच और टी लगा दो. यहाँ पे भी एच और टी लगा दो. यहाँ पे भी एच और टी लगाना है. यहाँ पे भी क्या एच और टी लगाना है.
तो आपको मिलेगा, सपोज यहाँ पे आपने एच लगा लिया, एच और टी है, यहाँ पे एच और टी है, तो फर्स्ट आपका बनेगा देखो एच एच एच, फर्स्ट एच एच तो आ गया, फिर टी एच एच, फिर यहाँ पे भी आप लिखोगे एच और टी, राइट। तो एच टी, देखो एच टी और एच, यहाँ पे टी है तो टी टी एच ऐसा बनेगा। आपको कितना भी आगे, कितना भी 4 कॉइन हो, 5 कॉइन हो, 6 कॉइन हो, कितने भी कॉइन है तो आप आगे चेन लगा सकते हो। ऐसा आपको फिलहाल यहाँ पे कितना था, 3 तक ही है, तो 3 तक आपको याद रखना है। यहाँ पे फर्स्ट याद रखो, यहाँ पे ऑल हेड, ऑल हेड, लास्ट टेल, मिडल टेल, फर्स्ट टेल, फिर ऑल टेल, लास्ट हेड, मिडल हेड और फर्स्ट हेड। ये मेथड से भी आप याद रख सकते हो, या डायरेक्टली ऐसा दिया है एच 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 एस टी एच, मिडल टेल, फर्स्ट टेल, एच 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 एस टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच एच टी, एच टी, जैसा आपको बने वैसा रख सकते हो, क्योंकि एड होना चाहिए यहाँ पे। सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे ऑल हेड, लास्ट टेल, मिडल टेल, फिर फर्स्ट टेल, ऑल टेल, फर्स्ट लास्ट हेड, मिडल हेड और ये फर्स्ट हेड। ये मेथड सही है आपको याद रखने के लिए। तो समझ गए आपको ये पूरा 3 कॉइन्स का टॉस, 3 कॉइन्स टॉस या 1 कॉइन इज अ टॉस थ्राइस। तो आपको सैंपल स्पेस समझ में आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो सैंपल स्पेस पहले, सबसे पहले आपको आना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स रिप्लाई मी देयर, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये पूरा सैंपल स्पेस सबको क्लियर है? ओके नेक्स्ट इज when two dice are thrown together then what will be the sample space? अभी यहाँ पे sample space क्या बनेगा देखो, 2 dice on one die the number is 1 to 6 numbers are there, second die के ऊपर भी नंबर क्या रहेगा 1 to 6, and 2 dice are thrown simultaneously at the same time they are the thrown, the what are the outcome, what are the possibilities? तो sample space कैसा बनेगा देखो, दिस टू रेड और एक व्हाइट लिया, 1 1 आ सकता है, राइट, दोनों के ऊपर 1 1, सेकंड दोनों के ऊपर 2 आ सकता है, एक के ऊपर 1 और सेकंड के ऊपर 2 आ गया, 1 और 2 दिख रहा है, देन 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 1 6, मैक्सिमम कितना है 6 है, राइट। देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फर्स्ट डाई पे 3 है, सेकंड डाई पे 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6, राइट, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसा 4 1 4 2 4 3 4 6 और 5 1 5 2 6, राइट, एंड 6 1 6 6, राइट। मिक्स टोटल ईयर देखो, फर्स्ट डाई जो रेड है, सेकंड डाई व्हाइट है, फर्स्ट डाई पे नंबर आपने क्या किया स्टार्टिंग में फिक्स रखा, सेकंड पे आपको क्या करना है चेंज करना है। नेक्स्ट वाले रो में क्या करना है आपको, सेकंड पे 2 है, बाकी सॉरी फर्स्ट पे 2 रखेंगे, बाकी सेकंड का चेंज करना है, मतलब सेकंड वाला जो है उसके चेंज करना है। ऐसा 1 1 से लेकर कहां तक लिखना है 6 6 तक, कितना 6 6 तक। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, event that's outcomes randomly selected here, event that both die have same number, दोनों डाई पे वो सेम नंबर है, तो आपको कौन सा ढूंढना है, 1 1 यहाँ पे है, 2 2 है सेम नंबर, 3 3 4 4 5 5 6 6, and sum of the number is what, प्राइम नंबर, जिनका सम कितना आता है प्राइम नंबर, ऐसा ढूंढना है आपको। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 4 5, 1 + 6 7, जिनका सम क्या प्राइम नंबर आ रहा है उनको लिखना है, 1 1 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3 2 5, उसके बाद 3 2 3 4
फिर 41 43, ये नंबर सबको लिखना है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा कि सेकंड डाई नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। सेकंड डाई का नंबर क्या फर्स्ट डाई से ग्रेटर होना चाहिए, तो कौन सा आएगा? 12 13 14 15 16, या 23 24 25 26, 34 35 36, 45 46 एंड 56। ये हो गया। ये सेकंड डाई पे नंबर यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड डाई पे नंबर यहाँ पे ये लेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेकंड डाई पे नंबर, सेकंड डाई नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। ये पूरा मिलेगा ऐसा, इसमें क्या सेकंड डाई नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट, राइट। इक्वल नंबर बोलेंगे तो इक्वल नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये आएंगे। ओके, ऐसे टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ईयर 36। To form a two-digit number using the digit 0 2 3 4 5 8 such that repetition of digit is not allowed। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जहां पे डिजिट दिए आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 और 8 ये नंबर दिया है। इससे आपको क्या करना है? टू डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और फॉर्म द टू डिजिट नंबर, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड मतलब 2 और 2 डबल नहीं ले सकते, 3 3 डबल नहीं होगा, 4 4 डबल नहीं होगा, 5 5 नहीं आएगा, 8 8 नहीं आएगा, राइट। टू डिजिट नंबर फर्स्ट आप 0 लेंगे, 0 0 एट 10 प्लेस नॉट अलाउड, तो 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 नहीं बनेगा। 0 कैसा कहाँ पे चाहिए आपको? इंट प्लेस पे चाहिए, राइट। तो फर्स्ट नंबर बनेगा 20 2 0 2 3 2 4 2 5 2 8, राइट ना। उसके बाद 3 0 3 2 3 4 3 5 3 8 4 0 4 2 4 3 4 5 4 8 4 4 नहीं आएगा, 5 0 5 2 5 3 5 4 5 8 8 0 8 2 8 3 8 4 8 5 ये नंबर बनेंगे। सी 0 2 3 4 5, these are 8, these digits are there, these are all digits are there। टू पहले लेंगे, 2 और 0 20 हो गया। 2 2 नॉट अलाउड हियर बिकॉज रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, ये नंबर नहीं बनेगा। 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 चलेगा, 2 8 चलेगा, राइट। नेक्स्ट जैसे 2 0 2 3 2 4 2 5 2 8 ये आ गया। अब 3 लो, 3 0 3 2 3 4 3 5 3 8। अब 4 लेंगे, 4 0 सेम, 5 0 2 5 8। अभी 8 कितने हो गए टोटल देखो, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 25, राइट ना। हम टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 25, राइट ना। 20 23 24 25 28 ऑल टू डिजिट नंबर। 0 आप फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, तो 0 सेकंड नंबर यूनिट प्लेस पे आना चाहिए, दैट्स अ नंबर फॉर्म। ओके ना, सबको क्लियर है ये? यहाँ पे डिजिट नंबर कोई भी दे सकते हैं, उससे आपको क्या करना है? नंबर फॉर्म, टू डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सबको समझ में आया? हाउ टू फॉर्म द टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करने हैं पहले यही सीखो, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे जा सकते हो। एक बार आपका सैंपल स्पेस बन गया तो आपको बाकी कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं आ सकता। इसे सैंपल स्पेस आपका करेक्ट होना चाहिए। सैंपल स्पेस में मिस्टेक मिलेगी तो पूरा आपका आंसर लिख के भी कुछ मतलब नहीं है। इसे सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। टोटल ये नंबर ऑफ 25। नेक्स्ट ball is to be picked at random from box containing 3 red ball, 3 white ball and 3 blue ball। तो आपको सबको यहाँ पे बॉल दिख रहे, बॉल ही बॉल है, इसमें से कौन सा बॉल उठा सकते हो, निकाल सकते हो। बॉल इज टू बी पिक, बॉल एक ही बॉल निकालना है, टू बी पिक एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स, रैंडमली कौन सा भी हाथ डालो निकालो। दिस बॉल में बी वॉट रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है या ब्लू हो सकता है।
रेड वाले भी 3 है, व्हाइट वाले 3 है, अब ब्लू वाले भी 3 है, राइट। तो हम उसको नंबरिंग देंगे, रेड R1 R2 R3, व्हाइट के लिए W1 W2 W3 बोल सकते हो, ब्लू के लिए B1 B2 और क्या B3 बोल सकते हो, राइट। सेम 3 रेड 3 व्हाइट 3 ब्लू, इस बॉक्स अंदर डाल दिया सबको, राइट, है ना। डायरेक्ट प्रैक्टिकली वन बॉल इज रेड रैंडमली, कौन हो सकता है, रेड आ सकता है, या व्हाइट आ सकता है, या ब्लू आ सकता है, या दूसरा कोई भी आ सकता है, इसमें ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3 आ सकता है, रेड 1 रेड 2 रेड 3 आ सकता है। सो नेमिंग देयर R1 R2 and R3, एंड रेड कौन सा निकाला आपने, रेड R1 निकाला है या रेड R2 निकाला है, रेड थर्ड निकाला है, ये आपको मालूम नहीं है, रेड ही है, इसलिए नंबरिंग देना है W1 W2 और ये W3 व्हाइट के लिए हो गया, और ब्लू के लिए B1 B2 और क्या B3। सो सैंपल स्पेस पे R1 R2 R3 W1 W2 W3 या B1 B2 B3, total ball here how many, 9 ball, that is number of S is equal to 9, नंबर ऑफ S is equal to कितना हो गया 9, समझे, नंबर ऑफ S is equal to 9, सैंपल स्पेस जहां पे नंबर ऑफ element in sample space there are 9 elements are there, 3 red 3 white and 3 blue, okay, clear है सबको। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.2, फर्स्ट क्वेश्चन, for each of following experiment write samples पे yes and number of sample point number of yes, ये लिखना है। each of following experiment write sample space yes and number of sample point that is the number of yes, ये लिखना है बस। सैंपल्स पे yes, करली ब्रैकेट में अंदर जितने भी एलिमेंट है वो लिखो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ yes how many they are, the right number of yes is equal to dash। let's see the first example, the first example is one coin and one die are thrown simultaneously, आपको एक कॉइन है और एक क्या डाई, अभी एक कॉइन तो उसके ऊपर क्या आएगा, हेड या टेल ही आएगा, एंड डाई के ऊपर नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, राइट ना। तो सैंपल स्पेस का क्या आ सकता है, कैन यू गेस, कोई बोल सकते इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, माइक ऑन करके बोलना है तो बोल सकते हो। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो सैंपल क्या आएगा, करली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ सकता है, ट्वेल्व, करली ब्रैकेट में 12 आएगा, वन कॉइन एंड वन डाई, डाई के ऊपर नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस नॉट ए सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या आएगा वो बताओ मुझे, यस पहले यस लिखना है, 8 नंबर नहीं बोलना है मुझे। वन कॉइन यहाँ पे मतलब क्या हो गया, हाँ यस, H1 H2 H3 H4 H5 H6, और ये तो हेड का हो गया। अभी टेल का बनेगा, टेल के लिए क्या होगा T1 T2 T3 T4 T5 T6, राइट ना, बराबर, यस राइट, गुड हरबी, क्या बनेगा यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, H1 एक कॉइन और एक डाई, तो वहां पे क्या बनना चाहिए H1 H2 H3 H4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो गया, या टेल हो सकता है तो T1 T2 T3 T4 T5 T6, राइट, यही बनेगा, राइट सेम। When coin and die are thrown simultaneously at the same time they are thrown, you will get here head and 1, हेड या 1 या हेड या 2 जो भी रहेगा, H1
H2, H3, H4, H5 और H6, मतलब हेड और 6। या टेल होगा तो टेल 1, टेल 2 आ सकता है, टेल 3 है, पॉसिबिलिटी जो भी आपको पॉसिबिलिटी मिलने वाली वो सब लिखना है। टेल 3, टेल 4, आपको पहले यहाँ पे कॉइन पहले बोला है तो कॉइन का पहले लिखो, सेकंड डाई है तो इसलिए डाई का सेकंड नंबर लिखा। आपको ऐसा होगा डाई पहले है फिर कॉइन है ऐसा, तो आपको लिखना है 1H, 2H, 3H, 4H, 5H ऐसा लिखना है। लेकिन यहाँ पे 1 कॉइन बोला है पहले तो कॉइन का हेड पहले लिखा, राइट। T6। अब यहाँ पे लिखना है आपको सैंपल पॉइंट दैट इज द नंबर ऑफ यस, दैट्स यू नो 6 6 + 6। ये ऐसा नहीं काउंट करना, ये पूरा एक ही हो गया, ये पूरा क्या एक ही नहीं, जिसको 2 काउंट करेंगे, 1 2, ये क्या हो गया 3 4 5 6, टोटल 6 + 6 इज 12। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12, दैट्स द आंसर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ यस लिखना है। नंबर ऑफ यस कितना आ गया 12। Next, 2-digit number are formed using digits 2, 3, 5 without repeating a digits. 2-digit number are formed using digits. Student, tell me what are the digits here? Digit आपके सामने 2, 3, 5. 2-digit number are formed using digits. तो sample space क्या बनेगा? Type here 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 2, 5, 3. Okay, anybody else? Okay, students. Okay, Prapti 2, 3. 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 2, 5, 3. Okay. Madhur, Anuj, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 2, 5, 3. Okay, good. Right hand. Digit number form using the digit 2, 3, 5. That is 2, 3. तो 23 बनेगा, 2, 5, 25 बनेगा, 3, 2, 32, 3, 5, 35, 5, 2, 52, 5, 3, 53. रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग होगा तो यहाँ पे 2, 2, 3, 3, 5 है वो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड, विदाउट रिपीटिंग डिजिट बोला है। तो विदाउट रिपीटिंग डिजिट, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 6। ओके, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 आ गया। ये आपको जो बॉक्स में यहाँ पे दिख रहा है वही आपका परफेक्ट आंसर बन गया। बाकी आप रफली कर सकते हो जो भी है। The arrow is rotated and stop randomly on the disc. Find out which color it may stop. ये है आपके सामने क्वेश्चन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। वो कहाँ पे स्टॉप, येलो पे हो सकता है, ऑरेंज पे हो सकता है, रेड या पर्पल या ग्रीन या ब्लू। The arrow rotated and stop randomly on the disc. Find out which color it may be stop. तो आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस यस बनेगा, यस इज इक्वल टू, राइट द कर्ली ब्रैकेट and curly bracket write the name of the color, red, comma orange, comma का मतलब और यहाँ पे, येलो और ब्लू और ग्रीन या पर्पल, राइट। arrow stop on circular disc made of 6 color, that is yes is equal to in curly bracket येलो और ब्लू और ग्रीन हो सकता है या पर्पल हो सकता है या रेड हो सकता है या ऑरेंज हो सकता है। इट्स ऑल दिस पॉसिबिलिटीज आर देयर, जितनी पॉसिबिलिटी हो। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6, ये भी कितना आएगा 6। Next, in the month of March 2019, find the days on which the date is multiple of 5. See in the page of the calendar 2019 March 2019 given, यहाँ पे multiple of 5 वाले सर, हाँ नंबर ऑफ कलर वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लिखेंगे तो भी चलेगा। नंबर ऑफ यस वहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके प्राप्ति, देखो 5
in the month of March 2019. Find the days on which date is a multiple of 5. Multiple of 5 means 5, 10, 15, 20, 25 और क्या 30, बस उसके आगे नहीं है, क्योंकि 31 तक ही है. Same. Days of March 19 which I date is multiple of 5 are curly bracket 5, 10, 15, 20, 25, 30. Writing curly brackets. यहाँ पे आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं, नंबर लिखेंगे तो भी चलेगा और नहीं लिखेंगे तो सॉरी क्या बोला है, डेज. फाइंड द डेज बोला है, सॉरी. फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. डेज देखो, डेज कौन सा है यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे सी कौन सा ट्यूसडे आ रहा है. नेक्स्ट 10 पे देखो कौन सा आ रहा है, संडे आ रहा है, राइट. फिर यहाँ पे 15 के लिए फ्राइडे आ रहा है, फिर 20 के लिए वेडनेसडे आ रहा है, और ये मंडे, फिर संडे. दीज आर द डेज 1 2 3 4 5 6. एक ही डे नहीं है ना, बाकी सब डे. डे यहाँ पे बोला, डेट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डे लिखना है. इन द मंथ ऑफ मार्च 19 क्वेश्चन रीड करो, देखो. फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 आपने लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, और उसमें डे कौन से आ रहे हैं, ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और क्या आ रहे हैं, सैटरडे आ रहे हैं. तो उनको वही डेज को लिखना है बस. Don't write the date or read the question carefully. Find the days बोला है, find the dates. और नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नंबर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं तो वहां पे नंबर मोस्टली लिखा जाता है. From road of safety committee of 2 form 2 boys B1 B2 and girls G1 D2. Complete the following activity to write the sample space. Yes, is activity question. Committee of 2 boys मतलब कौन रहेंगे, B1 B2, राइट ना. B1 B2 B1 B2. Committee of 2 girls, that is a G1 G2. Committee of 1 boy 1 girl फॉर्म करना है आपको, तो क्या होगा, B1 G1 पिकअप करो या B1 G2 पिकअप करो. यहाँ पे B2 और G1 लिया, बॉय नंबर 2 गर्ल नंबर 1, बॉय नंबर 2 गर्ल नंबर 2. अभी इसका सैंपल स्पेस बनेगा, देखो क्या है, फॉर्म रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 फॉर्म. 2 लोगों का कमेटी फॉर्म करना है, तो 2 लोग में दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकते हैं, एक गर्ल या एक बॉयज हो सकता है. तो यहाँ पे सैंपल स्पेस देखो क्या हुआ है, B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 और B2 क्या बनेगा, G2, राइट. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2. 2 लोगों की कमेटी फॉर्म करना है, तो अपने यहाँ पे कमेटी ऑफ 2 बॉयज के लिए हो गया, दोनों बॉयज, बोथ आर बॉयज बोथ आर गर्ल्स, और बॉयज और गर्ल मिक्स है तो ये आ गया. तो टोटल यहाँ पे सैंपल स्पेस बनेगा B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G2 और B2 G2. ओके, see this. ओके, समझ में आया सबको. श्रीराम सबको क्लियर है. कोई डाउट है तो बोलो. डाउट नहीं ना, चलो 5.1 5.2 दोनों आपको कंप्लीट किया है. आप अभी बुक में सॉल्व कर देना फटाफट, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है. 15 या 20 मिनट आपको लगेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए. विदाउट लुकिंग. कोई डाउट है तो लेक्चर है, मैं आपको एक 2 घंटे के अंदर आपको मैं ऐप में अपलोड कर देता हूँ, शायद वहां पे रिवाइज कर सकते हो, राइट. तो भी कोई डाउट रहेगा तो उसी में भी, तो भी व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देना. फर्स्ट 5.1 5.2 दोनों कंप्लीट कर दो. ओके, चलो बाय बाय. लेट्स स्टॉप टू हियर. 5.1 5.2 completed.